آج کا پہلا واقعہ 6 دوستوں کا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوگا۔ اب ان 6 دوستوں میں سے 2 دوست ایسے تھے جو غیر مرئی مخلوق پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے رضوان اور میں آپ سب کے بھیجے گئے واقعات کو نریٹ کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آپ سب جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ آج کی ایپیسوڈ میں جو واقعات میں آپ تک پہنچانے والا ہوں یہ واقعات اسلام آباد کا چنار پارک سے جڑے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا اور سپورٹ کے لیے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ سب کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اس لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو جلدی سے اپنے آس پاس حصار باندھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑی دلچسپی سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں واقعات کی جانب۔ آج کا پہلا واقعہ زین سلیم نے بھیجا ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم رضوان، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام زین ہے اور میں اسلام آباد سے آپ کو اپنا یہ واقعہ بھیج رہا ہوں۔ یہ آج سے 2 سال پرانی بات ہے جب میری ایک کال سینٹر میں نوکری لگی تھی۔ میں کافی خوش تھا کیونکہ میں نے ابھی صرف ایک جگہ اپلائی کیا تھا اور وہیں مجھے نوکری مل گئی تھی۔ ہماری ڈیوٹی ٹائمنگز رات کی تھیں۔ میری شفٹ رات 11 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہوا کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں آفس کے کولیگز کے ساتھ میری اچھی دوستی ہو گئی اور ہم ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے۔ وہ بھی میری طرح کم عمر اور جوان لڑکے تھے، اس وجہ سے ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی۔ ہم بریک میں بھی ایک ساتھ ہوتے اور آتے جاتے بھی تقریباً ایک ہی وقت پر تھے۔ جب وہاں میرا مہینہ مکمل ہوا تو جیسے ہی مجھے پہلی سیلری ملی تو میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب ٹریٹ دینی پڑے گی، خوشی کا موقع تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور ٹریٹ ملے گی۔ پھر ہم لوگوں نے 2 دن بعد کا پلان کیا کیونکہ چھٹی آ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگلے ہی روز ڈیوٹی کے دوران رات کے تقریباً 1 بجے ہمارے انٹرنیٹ کا ایشو بن گیا۔ ہم سب آفس والوں کو بریک دی گئی کیونکہ آفس میں انٹرنیٹ ٹھیک کرنے کے لیے ایک ٹیم بلوائی گئی تھی۔ ہم رات 2 بجے تک آفس کی بلڈنگ کے باہر انتظار کرتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہمارے فلور مینیجر نیچے آئے جنہوں نے ہم سب سے کہا کہ آج آپ سب آف کریں، یہ مسئلہ کل ہی ٹھیک ہوگا۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے، جبکہ میرے 5 دوست مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور میں نے انہیں کہا کہ چلو پھر آج ٹریٹ دے ہی دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سب خوش ہو گئے اور ہم ایک جگہ پیزا کھانے چلے گئے۔ ہم آرڈر دینے کے بعد اندر ہی بیٹھے تھے کہ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہاں مزہ نہیں آ رہا، کسی کھلی فضا میں بیٹھ کر پیزا کھاتے ہیں۔ اس لیے ہم آرڈر پک کر کے ایک پارک میں چلے گئے۔ تب ستمبر کا مہینہ شروع ہوا تھا اور اس رات ہوا میں ایک ٹھنڈی لہر تھی۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ جس پارک میں ہم گئے تھے اس پارک کا نام کچنار پارک تھا۔ جو لوگ اسلام آباد راولپنڈی سے سن رہے ہیں وہ اس پارک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ ہم پارک میں داخل ہونے لگے کہ اچانک ایک پولیس کی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی جو پہلے سے راؤنڈ پر تھی۔ پولیس والوں نے ہم سے پوچھا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے ہمارے ہاتھ میں کھانے کا سامان دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہیں کے لڑکے ہیں اور سکون سے کھانے پینے آئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس والے وہاں سے چلے گئے اور ہم پارک میں داخل ہو گئے۔ ایک جگہ اچھی لگی تو ہم سب وہیں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم نے جیسے ہی پیزے کا ڈبہ کھولا تو ہمیں ایسا لگا جیسے ٹھیک ہمارے پیچھے کوئی دائرہ بنا کر بیٹھا ہے۔ اس وقت سب نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جیسے کچھ لوگ ہمارے پیچھے آ کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے ارد گرد ہے۔ ہم سب نے اس بات کو اگنور کیا اور تب کسی نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہم لوگ پیزا کھانا شروع ہوئے تھے کہ اچانک ایک دوست بولا کہ یار میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ بولا تو فوراً ہم میں سے ایک اور لڑکا بھی بول پڑا کہ میرا سر بھی بھاری ہو رہا ہے، اور مجھے تو کچھ دیر پہلے یہ بھی محسوس ہوا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہم سب حیران تھے کیونکہ یہ بات باقی سب نے بھی محسوس کی تھی، لیکن ہم میں سے 2 لڑکے ایسے تھے جو ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، رات کے اندھیرے اور خاموشی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے، جبکہ حقیقت سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح کچھ دیر آپس میں بحث کرنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جگہ بدلی جائے، کیونکہ ہم میں سے 2 دوستوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ بھاری ہو۔ ہم سب وہاں سے اٹھے اور پارک کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔
हम वहां जाकर बैठे और खामोशी से पिज्जा खाने लगे। इसी दौरान हमें कुछ लोगों की सरगोशियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हमारे बहुत करीब बैठकर आपस में बातें कर रहा हो। ये वो आवाजें थी जो हम सब सुन रहे थे और साथ साथ इधर उधर भी देख रहे थे। उस पार्क में ना कोई बंदा ना बंदे की जात थी, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और हर तरफ सन्नाटा था। अब हमें खौफ आने लगा था और हमने इरादा कर रखा था कि जैसे ही पिज्जा खत्म होता है तो हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त पार्क एक खौफ का मंजर पेश कर रहा था। उस जगह का माहौल हमें बता रहा था कि यहाँ कुछ देर और रुके तो कोई ना कोई मसला बन जाएगा, क्योंकि पहले हमें सरगोशियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम पर कोई हंस रहा है। उस वक्त हम 6 के 6 दोस्त ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे हमें किसी ने फंसा लिया है और अब वो हम पर हंस रहा है, क्योंकि अब हमें हंसने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे करीब बैठकर हंस रहा है। हम वहां से उठने ही वाले थे कि मेरे एक दोस्त ने बहुत अजीब सी चीज देखी और उसे देखते साथ ही चौंक उठा और हमसे कहने लगा कि वो देखो ये सामने क्या चीज है। रिजवान भाई, जब हमने वहां देखा तो हमें एक अजीब सा साया नजर आया जो दरख्त पर लटका हुआ था और उसका कद काफी लंबा था। वो धुएं की शक्ल में कोई मखलूक थी जो दरख्त के साथ लटकी हुई थी। उसके पांव इंसानों की तरह थे लेकिन काफी बड़े थे और उसका वजूद भी एक इंसान की जिसामत से मुशाबहत रखता था, लेकिन वो इंसान भी नहीं था। देखते ही देखते वो साया जमीन पर उतर आया और फुटपाथ पर चलने लगा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। वो साया जमीन पर पहुंचते ही छोटा हो गया, जिसे हम सब दोस्त बकायदा देख सकते थे। और जब उसने दोबारा जमीन पर चलना शुरू किया तो वो अपने हर बढ़ते हुए कदम के साथ लंबा होता चला गया। ये खौफनाक मंजर देखने के बाद हम सब दोस्त फौरन उठ खड़े हुए और उस पार्क से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हम में से एक दोस्त ऐसा था जो अपनी जगह से उठ भी नहीं सक रहा था। काफी कोशिश के बाद जब वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो उठते साथ ही चीखने लगा। उसकी ये चीखों पुकार सुनने के बाद हम सब दोस्त उसके पास पहुंचे और उसके हाथ थाम कर उसे चलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका कहना था कि उसके पांव किसी ने मजबूती से पकड़ रखे हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा। इसी दौरान जब हमारी नजर सामने एक दरख्त पर पड़ी तो जो मंजर हमारी आंखों के सामने था वो दिल दहला देने वाला था। जो साया हमने कुछ देर पहले जमीन पर उतरते हुए देखा था, अब वही साया उस दरख्त पर उल्टा लटका हुआ था, जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे थे, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। इस मंजर को देखते ही हम सब दोस्तों ने बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और उस वक्त जो जो हमें याद था हमने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। वो जो कोई भी चीज थी, अल्लाह के कलाम का जिक्र सुनते ही उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी और मेरे दोस्त के पांव फिर से हरकत में आ गए। हम फौरन अपने उस दोस्त को लेकर पार्क से बाहर निकल आए और इस्लामाबाद IIT मरकज में वाक़ एक इमारत के नीचे पहुंचकर सांस बहाल किया। हमारे उस दोस्त की हालत काफी खराब हो रही थी। उसे हमने पानी वगैरह पिलाया और काफी देर उसके पास बैठे रहे और जब सुबह की रोशनी हुई तो उसे उसके घर तक छोड़कर आए। जब वो घर पहुंचा तो उसे कोई होश नहीं था। वो अपने बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। जब वो सुबह उठा तो उसकी टांगों में शदीद दर्द थी, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि उसकी टांगों पर उंगलियों के निशान छिपे थे। वो निशान ऐसे थे जैसे उसकी टांगों पर नील पड़े हों, लेकिन उन निशानात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये किसी गैर इंसानी हाथ के निशान हैं। इस वाक़े के बाद वो लड़का 1 हफ्ता बीमार रहा था और ऑफिस भी नहीं आ सका था, जबकि मुझ समेत तमाम लड़कों को 3 रोज तक शदीद बुखार रहा था। उस रात सुबह के वक्त जब मैं घर पहुंचा तो मैं भी काफी खौफजदा था, क्योंकि जो वजूद हमने देखा था वो हमारी बर्दाश्त से भी बाहर था। मैं इतना डर चुका था कि मुझे सारी रात जागने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस साये ने मेरा पीछा करके मेरा घर देख लिया है। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जो मेरे दोस्त इन चीजों पर यकीन नहीं रखते थे, इस वाक़े के बाद उन्हें भी यकीन हो गया। जिन्नात और ऐसी गैबी मखलूकात हर जगह पर होती हैं। इनका भी एक वक्त होता है जब ये आज़ाद अपनी मर्जी से घूम फिर रही होती हैं। उस पार्क में हम वैसे भी आते जाते हैं, लेकिन रात के सुनसाने में वहां जाना ये हमारी एक बड़ी गलती थी। इस वाक़े के बाद मेरे एक दोस्त ने ये सारा माजरा एक साहिब इल्म को सुनाया था, जिनका कहना था कि वो मखलूक तुम्हारे ऊपर हमला आवर हुई थी। शुक्र करो कि तुम लोगों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि रात के वक्त खाने की चीज कभी भी किसी वीराने में नहीं खाते, क्योंकि वहाँ जिन्नात और ऐसी गैबी मखलूकात का गुजर हो रहा होता है और वो खाने की खुशबू पर फौरन चली आती हैं।
ये मेरा वाकया था। उम्मीद करता हूँ कि सुनने वाले इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो अलवीना ने इस्लामाबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम अलवीना है और मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। आज मैं आपसे 2 वाक़यात शेयर करने जा रही हूँ। पहला वाक़या जो कि मेरे मामू के साथ पेश आया और दूसरा वाक़या मेरे अपने साथ पेश आया था। ये 2 वाक़यात मैं एक साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों वाक़यात का ताल्लुक एक ही जगह से है। ये दोनों वाक़यात इस्लामाबाद के चिनार पार्क से जुड़े हैं। पहले मैं अपने मामू का वाक़या आपसे शेयर करूँगी और उसके बाद फिर अपने वाक़े की तरफ बढ़ूँगी। मेरे मामू शुरू से ही इस्लामाबाद में हमारी फैमिली के साथ रहते आए हैं। ये 2018 की बात है, जब उनकी नई नई नौकरी लगी थी। उन्हें घर आते आते रात के 10-11 बज जाते थे। वो रोज़ाना अपने दोस्त के साथ आते जाते थे। उनके ये दोस्त उन्हें घर तक छोड़कर जाते थे। एक रोज़ उनके दोस्त को किसी जगह ज़रूरी पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घर जाते हुए मेरे मामू को मेन रोड पर ही उतार दिया। मेरे मामू ने उन्हें रास्ते में ही कह दिया था कि तुमने जहाँ जाना है वहाँ वक्त से पहुँचो, मैं बीच के रास्ते से घर चला जाऊँगा। अब बीच के रास्ते में एक चिनार पार्क भी आता था, जिसके अंदर से मेरे मामू ने गुजर कर जाना था। मेरे मामू बताते हैं कि मैं पार्क में दाखिल होकर एक फुटपाथ पर चलने लगा। जब वो पार्क में दाखिल हुए तो उन्हें एक फैमिली पार्क से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही थी। इसके अलावा उन्हें 1-2 और भी लोग नजर आए, लेकिन वो पार्क के दूसरे हिस्से में थे। मेरे मामू जब पार्क के दरमियाने हिस्से में पहुंचे तो उन्हें एक आदमी अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो उनकी तरह फुटपाथ पर ही चल रहा था। रात के अंधेरे में भी वो साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। जिस फुटपाथ पर मेरे मामू चल रहे थे, उस फुटपाथ के इर्द गिर्द घने दरख्त थे। मेरे मामू देखते हैं कि वो आदमी अपनी जगह पर रुक जाता है और अपना चेहरा दूसरी जानिब करके उनका इंतजार करने लगता है। पहले तो मेरे मामू यही समझे कि शायद इसके साथ कोई और भी वॉक कर रहा है जो पीछे रह गया है और अब यह आदमी उसके आने का इंतजार कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। जब मेरे मामू उसके करीब से गुजरे तो वो आदमी वापस मुड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो शख्स काफी अजीब और पुरस्कार सा था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। सर्दियों की रातें थीं और पार्क के उस एरिया में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे मामू के दिल में ख्याल आया कि यह आदमी कोई चोर डकैत भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और वहां से जल्द निकलने का इरादा किया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उस शख्स ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी, जिसके कदमों की आवाज बाकायदा मेरे मामू के कानों में सुनाई दे रही थी। ये सब देखने के बाद मेरे मामू काफी घबरा गए और एक जगह रुककर उसे गुजरने के लिए रास्ता दे दिया। लेकिन जब मेरे मामू अपनी जगह पर रुके तो वो आदमी भी चलती जगह पर रुक गया। इसके बाद जब मेरे मामू दोबारा चलने लगे तो वो आदमी भी फिर से चलने लगा। वो आदमी मेरे मामू के जब भी करीब आता था, मेरे मामू को जलने की स्मेल आती थी। वो स्मेल ऐसे थी जैसे किसी ने बड़ी मिकदार में गोश्त जलाया हो। ये एक ऐसी स्मेल थी जो मेरे मामू के दिमाग पर चढ़ने लगी थी और इस सब की वजह से उन्हें चक्कर भी आने लगे थे। इसी दौरान मेरे मामू पर किसी ने टॉर्च की लाइट से रोशनी डाली। जब मेरे मामू ने वो रोशनी देखी तो वो फौरन उसी जानिब भागने लगे। अब जब मेरे मामू भागे तो वो शख्स भी उनके पीछे भागने लगा। मेरे मामू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हिम्मत करके भागते रहे और जैसे ही सामने देखा तो कुछ पुलिस वाले पार्क के अंदर खड़े थे, जो मेरे मामू की तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी किए हुए थे। उस वक्त मेरे मामू उन पुलिस वालों से कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन उस शख्स के कदमों की आवाज बता रही थी कि वो उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने देगा। वो पुलिस वालों से चंद कदम दूरी पर ही जमीन पर गिर पड़े और इतने में 2 पुलिस कांस्टेबल फौरन मेरे मामू के पास आए और जब उन्हें चेक किया तो मेरे मामू को ठंडे पसीने आ रहे थे। इसके बाद जब मेरे मामू के होश बहाल हुए तो उन्होंने सारा माजरा उन्हें सुनाया, जिस पर पुलिस वालों का कहना था कि उन्हें सिर्फ मेरे मामू दूर से भागते हुए नजर आ रहे थे, जबकि उनके पीछे कोई भी नहीं था। ये बात काफी खौफजदा कर देने वाली थी। वो जो कोई भी चीज थी गैर मरई मखलूक में से थी, जिसे सिर्फ मेरे मामू देख सकते थे और महसूस भी कर सकते थे। इस वाक़े के बाद पुलिस वाले उन्हें घर तक छोड़कर गए थे, जिसके बाद वो सारी रात बुखार में जलते रहे। ये मेरे मामू का वाक़या था। अब मैं अपने वाक़े की तरफ आती हूँ जो मेरे साथ पेश आया था। ये कोरोना के दिनों की बात है, जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था।
हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थीं जिन्हें डॉक्टर ने कहा हुआ था कि वॉक उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना के आते ही उन्होंने वॉक करना छोड़ दी थी और घर में रह रह कर उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात वो वॉक के लिए मेरी वालदा को बुलाने आई तो मेरी वालदा पहले से बुखार में थी। मेरी वालदा ने उन्हें कहा कि आपके साथ अलवीना को भेज देती हूँ क्योंकि मुझे बुखार है और मेरे से चला भी नहीं जा रहा। इसलिए मैं उनके साथ वॉक पर चली गई और जाते हुए अपनी एक दोस्त को भी साथ ले लिया। तब रात के 9 बजे के करीब का वक्त था। सड़कें सुनसान थीं क्योंकि सब लोग अपने घरों में थे। हम वॉक करते करते कचनार पार्क के बाहर से गुजर रहे थे जहाँ सड़क है। जब हमने पार्क के अंदर देखा तो इस कदर खौफ का आलम था कि मैं बता भी नहीं सकती। खैर हमने पार्क में जाना भी नहीं था, हम तो बस एक लंबा चक्कर लगाने आए थे। अब वो आंटी आगे थीं जबकि मैं और मेरी दोस्त उनके पीछे चल रहे थे। चलते चलते हमें महसूस होने लगा जैसे कोई है जो हमारे पीछे चल रहा है। लेकिन इसमें खौफ पैदा कर देने वाली बात यह थी कि चलने वाले ने हील वाली जूती पहन रखी थी। इस आवाज को सुनते ही मैंने और मेरी दोस्त ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। हमने इस यकीन से देखा था कि कोई फीमेल हमारे पीछे होगी, लेकिन हमारे पीछे कोई भी नहीं था। मैं और मेरी दोस्त फिर से आपस में बातों में लग गए और ठीक 1 मिनट के गुजर जाने के बाद हमें दोबारा महसूस होने लगा जैसे कोई लड़की हील वाली जूती पहनकर हमारे पीछे चल रही है। अब की बार भी जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। हम दोनों को डर लगने लगा और हम अपने कदम बढ़ाकर आंटी के साथ हो गए और कुछ ही देर बाद हम एक गली में दाखिल हो गए। उस वक्त खौफ इतना था कि खौफ की वजह से हम सारा रास्ता खामोश रहे और आपस में कोई बात भी नहीं कर सके, क्योंकि सुनसाने में हील वाली जूती पहनकर कोई आपका पीछा करे और मुड़कर देखने पर भी नजर ना आए तो इसका इशारा सिर्फ एक ही तरफ जाता है, जो सब सुनने वाले अच्छे से जानते होंगे। जब हमारा घर आने वाला था तो उन आंटी ने एक अजीब से लहजे में हमसे पूछा कि क्या तुम दोनों को भी उन कदमों की आवाज सुनाई दी थी। बस ये सुनने की देर थी। हम दोनों एक आवाज में बोले कि क्या आंटी आपको भी वो आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त उन आंटी के चेहरे पर खौफ भी था और वो हमें नॉर्मल रखने के लिए थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। उस वक्त वो खामोश रहीं। फिर घर आकर उन्होंने बताया कि जब वो कोरोना से पहले वॉक किया करती थीं तो उनके साथ वॉक करने वाली खवातीन ने उन्हें बताया था कि उनके साथ यहाँ अजीबोगरीब वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें बच्चों के रोने हंसने की आवाजें और कई ऐसे वाकयात शामिल थे। जिसके बाद उन सब ने रात में आना छोड़ दिया और फजर के बाद की रूटीन बना ली। लेकिन इस सब के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ वो चल रहा था जो उस रात मेरे मामू ने देखा था। ये पार्क इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ शाम में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब ये सुनसान होता है तो इसे देखकर वाकई खौफ आता है। ये मेरे वाकयात थे। प्लीज इसे अपनी आवाज में नरेट करके लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। इंतजार रहेगा। मैं ज़ैन सलीम और अलवीना का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाकयात हम तक पहुंचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।